निकालनी पड़ती है। आप सुबह उठ के ऑफिस भागते हैं तो मैं ट्रेनिंग ट्रैक पे। 28 साल के इंतजार के बाद हमने वर्ल्ड कप जीता। मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बना। फिर लगा सब सेट है, मगर लाइफ भी ऐसी गुगली डालती है कि सेलिब्रेशन तो दूर की बात है, हेल्थ खराब हुई तो टीम से बाहर। तो बात तो फिर वही आ गई ना कि जब तक बल्ला चल रहा है ठाठ है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के वेल्थ विद प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, जिंदगी के उतार चढ़ाव में जियो विश्वास के साथ। आपसे हम एक सवाल काफी अहम पूछना चाहेंगे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के। सरकार इस सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें करती रही, लेकिन अभी तक काफी हद तक काबू नहीं मिल पाया, सफलता नहीं मिल पाई सरकार को। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? No, infrastructure growth is taking place, but our requirement is very high. And whatever we are making, it is not up to the satisfaction of the requirement. For instance, last plan, during the 11th plan, we have made substantial amount, we have invested substantial amount in the physical infrastructure, about 565 billion US dollar. During the 12th plan, our investment requirement is 1 trillion US dollar. And nearly 30-35% of this investment requirement will have to come from the private sector. Therefore, we are working on the public-private partnership, PPP model. We are asking, in fact, even during my last visit to Chicago, when I had interaction with the top-level businessmen and industrialists, I implored them that if they can come and make investment in the infrastructure sector like road, railways, communication, power, transport, port, airport, seaport, etc. So some of them are showing interest and they are coming, but requirement is very high. Development should take place with a faster speed, and if we can create that, definitely it would help, and at the same time domestic policies have to be adjusted. I hope the Parliament in the next session, they will be able to get the necessary land legislation done. Many of the important legislations which are required to carry on the process of reforms are to be actually enacted, and some sort of consensus is required, because as ruling party we do not have the absolute majority in both the houses of the Parliament. Therefore we require the support of the others. हालांकि आपने काफी अहम मुद्दा उठाया आम सहमति का, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि सरकार के भीतर ही कई मंत्रालयों के बीच आपस में आम सहमति नहीं बन पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। मसलन हम पावर सेक्टर का उदाहरण ले तो पावर मिनिस्ट्री का कहना है कि कोयला नहीं मिल पाता है कंपनियों को, कोल मिनिस्ट्री का कहना है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाती, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि पर्यावरण के कानून जो है वो उन्हें उस हद तक अलाउ नहीं करते, इतने ज्यादा खुली छूट दे खनन को लेकर के। आपको क्या लगता है इसमें कैसे तालमेल बिठाया जाए, कितनी बड़ी चिंता है ये आपके लिए? No, these are the problems which have to be resolved, and in fact I myself have started monitoring these events, that mega power projects. I am addressing the problems of environment, I am addressing the problems of coal linkage, and I am addressing the problems of getting the other clearances which could be expedited. Prime Minister is also having meeting with the on the infrastructure side. So efforts are being made to resolve these intra-ministerial problems as quickly and as smoothly as possible. चलिए इन सबसे हटके एक हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के और खासकर कोर्ट के हाल के कुछ फैसलों के ऊपर, जिसको लेकर तमाम आशंकाएं और उसके तमाम असर को लेकर बातचीत होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ढेर सारे टेलीकॉम सेक्टर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, इससे निवेशकों का भरोसा कम नहीं होगा? निवेशकों को एक बहुत बड़ा धक्का नहीं लगा इससे कि अब यहाँ निवेश करने से कतराएंगे? I don't think it is that way. In past also many a times it has been seen that many of the taxation legislations or decisions of the taxation department have been turned down by court, and the necessary amendments in the law have been brought. So far the judgment of the Vodafone case is concerned, we are examining it, and after the examinations whatever would appear to be the appropriate action to take, on the one hand to protect the
interests of the revenue, and on the other hand to ensure the confidence of the prospective investors, particularly foreign investors, on the system of the country. Keeping these two objectives in view, the appropriate decision government will have to take, and government will take that decision. ये तो आपने वोडाफोन के बारे में कहा, लेकिन लाइसेंस जो कैंसिल हुए उसका क्या असर देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? This is the judgment of the Supreme Court, so it will have to be studied and see that what best mechanism could be worked out. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट के ताजा फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर से इसमें पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी गई है, ये आपके लिए और सरकार के लिए कितनी बड़ी राहत है? I have already welcomed the judgment of the trial court because it was the decision of the Supreme Court past its observations that as the matter is under consideration of the trial court, Supreme Court said that we are not going to take any decision on it. And now the trial court, after considering all aspects, have rejected the application of Sri Subramaniam Swamy. He has rejected the application of Sri Subramaniam Swamy, and now Sri Swamy should be satisfied with it. क्या माना जाएगा भी इससे सरकार की छवि सुधारने में काफी हद तक मदद मिलेगी? At least one problem is resolved. चलिए प्रणोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से बजट के समय में आप इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने CNBC आवाज के लिए इतना ज्यादा वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you. Heaven for little girls, for little girls get bigger every day. Lemon is 50 cents. I take Hong Kong dollars. That's it, Auntie. What? May Ram Guma. Bye. Thank heaven. At HSBC, we believe that in the future, even the smallest business will be multinational. How deep are you willing to dive for your object of passion? The new Fiat Linea and Punto 2012 got heart. ये है इस छोटे से गांव की छोटी सी बिन्नो। और ये है इसका स्कूल। इसके माँ बाप ने शायद अपने बचपन में स्कूल देखा भी ना हो। ये हैं बिन्नो के दो भाई, गोश्तो और नंदू। बचपन में इनके पिताजी के भी दो भाई थे, पर वो रहे नहीं। ये है गोश्तो का छोटा सा खिलौना। इसके पिताजी के पास न तो एक खिलौना था और न ही बिजली। बिन्नो के पास एक प्यारी सी मुस्कान है। पता नहीं इसकी माँ के पास ये मुस्कान थी कि नहीं। बिन्नो की आंखों में बहुत से सपने हैं, बड़े बड़े सपने। इसके माँ बाप की आंखों में सिर्फ 3, बिन्नो, गोश्तो और नंदू। हर माँ बाप के सपने होते हैं उनके अपने बिन्नो, गोश्तो और नंदू। एक एक करके इन्हीं सपनों को हम साकार कर रहे हैं। Would you like a Mercedes-Benz to go with your copy of Forbes India? Subscribe now and win a Mercedes-Benz C-Class and other assured gifts. Avail the special Forbes India subscription offer. SMS Forbes to 51818. Offer valid till 1st March 2012. मार्केट के आखिरी घंटे में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? आज का सौदा काटें या लेके जाएं और कल के लिए क्या दांव लगाएं? बाजार बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा, कल का फायदा। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। योर मनी के प्रायोजक हैं इंडसइंड बैंक। आपने चाहा, हमने किया। रॉयल प्ले, फील द चेंज। ग्रीन प्लाई, प्लाईवुड, ऑलवेज होएगा।
और बजाज आलियांज SMS लाइव 256070 और जियो बेसिक कार्ड। आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। आज हम करने वाले हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां हम आपको बताएंगे कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कहां और कितने पैसे लगाने की जरूरत होगी। और इसमें हमारा साथ देंगे ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल। पंकज, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नागपुर से मोहम्मद जावेद का सवाल। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद, गुड इवनिंग। बताइए आप क्या करते हैं और किस तरह आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है अब तक? मैम, मैं नागपुर में अकाउंट्स का जॉब करता हूँ। जी हाँ, अकाउंट्स करता हूँ। जी, अकाउंटेंट हूँ मैं। जी, बताइए आपके घर में कौन कौन है? अब तक आपने कहाँ कहाँ निवेश कर रखा है? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, एक 2 छोटे बच्चे हैं और मम्मी पापा है। जी जी। कितना कमाते हैं, कितना बचा लेते हैं? आपने निवेश कहाँ कहाँ करके रखा है? आपके गोल्स क्या हैं? थोड़ा बताएं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जी हाँ, मेरी एक्चुअली सैलरी जो है वो 15,000 है। जी। मेरी वाइफ की सैलरी है 20,000। जी। मैं आफ्टर एक्सपेंसेस मेरे नेट जो सेविंग हुई थी वो 10 से 12,000 होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हमने जस्ट अभी पीपीएफ स्टार्ट किया है 1 महीने तो पहले से, दोनों में, मेरी वाइफ और मैं। और अभी HDFC म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट अभी शुरू किया है इसी मंथ में। ठीक है। और 2,000 रुपए हर महीने हम डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग अब तक करके रखी है जावेद, जाहिर सी बात है आपके कुछ गोल्स होंगे जो आपको अचीव करने होंगे, तो वो गोल्स क्या हैं आपके? मैम, मैं